Hello everyone. So in today's lecture learners, we are going to revise Indian Evidence Act for Himachal Pradesh Judiciary exam. So before I start with the lecture learners, this is a special batch that Unacademy has introduced for rapid revision for your preliminary exam. So offer price is only 6,999. Otherwise the price of this course is 19,999. So you can save so much by using this code. इसका जो link है आपको description box में मिल जाएगा और either you can just scan this code. कंप्लीट इसमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे अगर आपके लाइव लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल लर्नर्स दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट कि आपको शेड्यूल एंड अपडेट मिल जाए रिगार्डिंग योर स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस एंड अदर लेक्चर्स। तो आज के जो लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम योर सेक्शन 91। So section 91 deals with evidence of terms of contracts, grants and other disposition of property reduced to form of document. So this says when the terms of a contract, ये कहते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रांट है या कोई भी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, ठीक है, या फिर आपने या तो वॉलंटरली उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया या फिर कंपल्सरी वो राइटिंग में होना चाहिए या फिर लॉ रिक्वायर करता है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, देन ये सेक्शन कहता है कि आप कोई भी ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते हो उसको प्रूव करने के लिए। इन टू प्रूव द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन नॉट गिव एन ऑरल एविडेंस। आपको वो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना होगा, ईदर प्राइमरी, अगर प्राइमरी अवेलेबल नहीं है देन यू कैन जस्ट प्रेजेंट द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस। So let's just have a reading through this. This says when the terms of a contract or of a grant or other disposition of property has been reduced to the form of a document, अगर वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिड्यूस की गई है, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such nature except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which the secondary evidence is admissible under the provisions herein before. There are two exceptions to this. इसकी दो exceptions हैं। क्या exceptions हैं? ये कहता है कि when a public officer is required by law to be appointed in writing, कि अगर law require करता है कि public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that, and ये show हो जाए कि particular person has acted as such officer. फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन रेज हो जाए कि वेदर सर्टेन पर्सन इज अ हाई कोर्ट जज एंड इट इज शोन दैट ही हैज बीन एक्टिंग एज अ हाई कोर्ट जज, देन दैट इज सफिशिएंट। वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। दिस सेज व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, the writing by which he is appointed need not be. This is the first exception. Second exception is wills admitted to probate in India may be approved by the probate. Probate का मतलब क्या होता है? That means the certified copy of a will. So wills admitted to probate in India उनको जो है probate से prove किया जा सकता है। There are three explanations further that are given with this section. The first explanation is this section equally applies to cases in which the contracts, grants or other disposition of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one. तो ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है, अगर वो एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड है या फिर in cases in which they are contained in more documents than one, so then ये सेक्शन उस पर भी अप्लाई करता है। So if a contract is contained in several letters, so all the letters in which it is contained must be. So सारे letters को प्रूव करना होगा जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा। Explanation 2 says that when there are more originals than one original only need be. तो अगर कोई bill of exchange है that is drawn in a set of 3, if a bill of exchange is drawn in a set of 3, then one only need be proved. This is what is your explanation. कि अगर कोई चीज एक से ज्यादा ओरिजिनल में है सिर्फ एक ओरिजिनल प्रूव करने की जरूरत। Further explanation 3 says that the statement in any document
whatever of effect other than the facts referred to in this section shall not prohibit the admission of oral evidence as precedent. ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई स्टेटमेंट कंटेन्ड है other than these facts, then उसके रिगार्डिंग oral एविडेंस दिया जा सकता है, that is not prohibited. To understand this, let's see the illustration. A कॉन्ट्रैक्ट करता है राइटिंग में बी के साथ फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म, कि वो जो है इंडिगो डिलीवर करेगा कुछ टर्म के ऊपर. कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है, mentions the fact that B had paid the price of other indigo contracted for verbally on another occasion. कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन किया गया है ये फैक्ट कि बी ने जो है ए को प्राइस पे कर दिया है बाकी इंडिगो का, ठीक है, फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन. ऑरल एविडेंस इज ऑफर्ड. ऑरल एविडेंस ये शो किया गया दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो, कि कोई भी पेमेंट नहीं हुई है बाकी इंडिगो के लिए. द एविडेंस इज एडमिसिबल. व्हाई? बिकॉज दिस फॉल्स अंडर द एक्सप्लेनेशन 3. तो अगर कोई स्टेटमेंट किसी डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड है ऑफ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स दैट इज रेफर्ड अंडर दिस सेक्शन, then that is admissible under your section 91, that is not prohibited. वहां पे oral evidence दिया जा सकता है. Next is section 92. Section 92 deals with exclusion of evidence of oral agreement. This says that कि अगर कोई टर्म्स हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की या कोई मैटर है दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, अगर वो प्रूव हो गया है अकॉर्डिंग टू द 91 सेक्शन, तो कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता किसी ऑरल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग. नो एविडेंस ऑफ एनी ऑरल एग्रीमेंट शैल बी एडमिटेड एज बिटवीन द पार्टीज. किस चीज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वेरी करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए उसको स्टेटमेंट. No evidence of any oral agreement or statement as between the parties to such instrument or the representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding or subtracting from it. For example, अगर A ने अपना घर जो है B को लीज पे दे दिया, ठीक है, तो A ने अपना या फिर हम वैसे एग्जाम्पल लेते हैं, A ने B को जो है कुछ पैसे दिए, ठीक है, पैसे दे दिए उसने और उसने बोला कि आप ये पैसे मुझे वापस कर देना, 1% इंटरेस्ट लगेगा. उसने एक प्रो नोट दे दिया कि 1% इस पे इंटरेस्ट लगेगा. एक कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज सब लिखी गई. बाद में जो है उसने पैसे रिकवर करने के लिए केस फाइल कर दिया. अब कोर्ट में जिसने पैसे देने थे वो ये एविडेंस देता है कि नहीं, ये तो बाद में हमारे बीच में डिसाइड हो गया था कि 1% नहीं, ये तो 0.5% पे दिया जाएगा, कि 0.5% जो है इंटरेस्ट देना है. बट उनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था. तो अगर इस चीज को प्रूव करना है तो वो रिटन डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करना होगा. कोई भी ऑरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए. वेरी यही ये चीज कहता है सेक्शन में. बट देयर आर 6 एक्सेप्शंस दैट आर अटैच्ड विद दिस सेक्शन. First proviso says that any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party or mistake of fact. तो कोई भी फैक्ट प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, ऑरल एविडेंस वहां पे दिया जा सकता है जो इनवैलिडेट करता है डॉक्यूमेंट, जैसे कि फ्रॉड हो गया, इलीगैलिटी होगी, वहां पे दिया जा सकता है. सेकेंड एक्सेप्शन है, ये कहता है कि अगर कोई सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट साइलेंट है, उस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया कि ये जो पेमेंट है ये किस मोड से होगी, क्या ये पेमेंट कब होनी है जो कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर कोई सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग एविडेंस दिया जा सकता है विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस टर्म्स दैट मे बी प्रूव, उसको प्रूव किया जा. थर्ड इज इफ देयर इज एनी कंडीशन प्रेसिडेंट. ये क्या कहता है कि अगर कोई सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है रिगार्डिंग द कंडीशन प्रेसिडेंट, कि पहले इस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो कंडीशन है ये प्रूव होगी, बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले ये कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन उसके लिए रिगार्डिंग अगर कोई एग्जिस्टेंस करता है सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट उसको प्रूव किया जा सकता है. Fourth proviso says that the existence of any distinct subsequent oral agreement, अगर कोई subsequent oral agreement exist करता है, rescind का मतलब होता है कैंसिल करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ऐसे उसको प्रूव किया जा सकता है.
बट देर इज ऑल्सो फर्दर एन एक्सेप्शन टू दिस कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसको लॉ रिक्वायर करता है कि ये राइटिंग में होना चाहिए एंड उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली, देन वहां पे जो है कोई भी सब्सिक्वेंट ऑरल एग्रीमेंट नहीं दिया था. So this says the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or other disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of the law. Proviso 5 further says that any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually next. कोई भी यूसेज या कस्टम बाय विच इंसिडेंट जो इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, ठीक है, वो प्रूव किए जा सकते हैं. तो sixth proviso says that any fact may be proved which shows in what manner the language of the document is related to existing. कोई भी फैक्ट प्रूव किया जा सकता है अगर जो लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट की वो क्लियर नहीं है, ये शो करने के लिए कि ये जो लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट में यूज की गई है, दिस इज रिलेटेड टू द व्हाट एक्जिस्टिंग. So these are the 6 provisos that are attached to your section. That is 92. तो एक होता है पेटेंट एम्बिग्यूटी, एक होता है लेटेंट एम्बिग्यूटी. पेटेंट एम्बिग्यूटी इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 93 to 94. लेटेंट एम्बिग्यूटी इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 95 to 96. पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में यूज की गई है वो क्लियर नहीं है एंड कोई भी एक्सट्रिंसिक एविडेंस नहीं दिया जा सकता उसको क्लैरिफाई करने के लिए. For example, if A agrees in writing to sell a horse to B for ₹1,000 or 1,500, then evidence cannot begin to show कि कौन सा प्राइस को देना चाहता. This is patent ambiguity. अगर कोई डीड है उसमें ब्लैंक्स हैं, एविडेंस नहीं दिया जा सकता शो करने के लिए कि what was meant to be filled. So patent ambiguity is dealt under your section 93 to 94. Further, latent ambiguity. Latent ambiguity ये कहता है कि जहां पे आप एक्सट्रिंसिक एविडेंस दे सकते हो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उस डिफेक्ट को जो है सही करने के लिए, दैट इज लेटेंट एम्बिग्यूटी. सो दैट इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 95 to 97. फॉर एग्जांपल, इफ ए एग्रीज टू सेल टू बी फॉर ₹1,000 माई वाइट. ए एग्री करता है बी के साथ सेल करने के लिए 1,000 रुपए के लिए माई वाइट हॉर्स. ए के पास 2 वाइट हॉर्सेस हैं. So evidence may be given of facts which shows which of them was filled. Evidence दिया जा सकता है ये शो करने के लिए कि उनमें से ये कौन सा व्हाइट हॉर्स जो था, इनमें से कौन सा व्हाइट हॉर्स वो बेचना चाहता. So this is the meaning of latent and patent ambiguity that is dealt under your these sections. So to discuss further, to revise more learners, you can just follow me on Unacademy. लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका 1 बजे अभी जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स आपका लेक्चर है, दैट इज ऑन अनअकैडमी ऐप, जो आप बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो आप ज्वाइन कर सकते हो. जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टेलीग्राम चैनल से जो है आप उस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग दिस कोड जो मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज VB Law. Apart from this, there is a limited time offer that is running on Unacademy. So जल्दी ही Unacademy पे प्राइस हाइक होने वाला है. You can just save up to 40% off on all the subscriptions. You can just see the price कि आप कितना आपको लेस मिल सकता है by using this code. So thank you so much learners. I'm just ending the session here only. See you all in the next.